all know that nations and people progress with science and technology. But the true identity of a people or a race is through their arts and culture. Because through art, we express our true identity, feelings, and emotions. Today, I'm really pleased to introduce to you a celebrated artist from Karachi, Pakistan, who not only received a lot of acclaim for her creative work in Karachi when she studied her Bachelor's of Arts from the Arts Council Karachi. She was celebrated and she was recognized for her talent and for her paintings and for all her masterpieces, even as she worked in Karachi. After that, after coming to Australia, she had to take a sabbatical from work because life happened to her and she raised a family. But now she's back in action and raring to go. I would like to Th- introduce to you. Yeah. Thank you, Claudia. Thank you for having me. Oh, Thank you so much. thank you so much for making time to be on the show. Her name is Mrs. Humeza Mashkoor, and she is the daughter of celebrated artist from Karachi, Mr. Mashkoor Raza. Hello, Humeza. How are you? Yeah, thank you so much. I'm good. How are you, Claudia? I'm good, thank you, Humeza. I'm so excited to be talking to somebody hailing from the fine arts. Thank you. Same here. I'm Humeza, so excited too. So excited to show my work and some information about art. Humeza, So let's talk about it. Yeah. yeah, sure. Humeza, we would love to see your artwork and hear your story from you. So please tell us about your journey. Uh, yeah, I done my bachelor's in fine arts in from Karachi Arts Council in 2008, and then after that, then I got married and came to Australia. फिर then I got like kids हो गए, फिर मेरा काम थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन in 2019 I start my work again. Very good. So अब मैंने दोबारा start किया and it's going good. So alhamdulillah, अच्छा काम जा रहा है and I'm doing it and inshallah in future मैं और आगे काम करती रहूंगी. So it's really good कि फौजिया कि आप नए आर्टिस्ट और नए like पाकिस्तानी कम्युनिटी में so much talent और लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं और बात नहीं करते, बट इट्स रियली गुड लाइक आपने ये स्टार्ट किया कि लोग आए और बात करें इस बारे में. So it's very good work. You are Humeza, doing the it really good pleasure job. जी हुमैरा थैंक यू द प्लेजर इज एंटायरली माइन क्योंकि मेरा तो यही बचपन से इम्प्रेशन रहा है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी सारे हमारे सिटीज़ के इतने टैलेंटेड लोगों से मैं टकराई हूँ लाइफ में चाहे आर्ट की फील्ड हो या टीचिंग की हो या कोई भी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव काम हो और मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स हम सब चीज़ों में अच्छे हैं बस हम शोकेस नहीं कर रहे होते अपने टैलेंट को. हाँ नहीं बिल्कुल. मेरा बचपन सारा आर्ट में ही गुजरा है कि मैं आई एम डॉटर ऑफ मशकूर रजा जो इट्स वेरी वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान. बिल्कुल. उनको तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है माशाल्लाह. और तो आप ये कह लें कि मैं बचपन से ही एक आर्ट में ही थी और मुझे माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज माय फादर. तो उनको देख के मुझे काफी शौक हुआ कि मैं भी कुछ करूं और काम करूं इसके. तो देन आई लर्न अबाउट इट. फिर मैंने काम शुरू किया है, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया बिकॉज आई एम मदर ऑफ 3 boys. So you can imagine आई एम Your hands full. बॉयज के साथ हैंड्स फुल. यस. So तो आप पहले हमें अपना अर्ली पार्ट ऑफ योर आर्ट जर्नी बताइए कि आपने जब बैचलर्स किए आप कौन सा मीडियम यूज करती हैं जैसे ऑयल्स यूज करती हैं एक्रिलिक्स या वाटर कलर्स. मैंने मेजर इन पेंटिंग्स किया था इन एंड माय थीसिस वाज इन मरीन लाइफ पे मैंने काम किया था. So it was good. अच्छा हुआ काम. Alhamdulillah, I got the 4th position in the Sindh board, वाह. and yeah, so it was good.
then I'll stop. मैंने जैसे बताया बीच में गैप आ गया. Then I started working in 2019 and मैंने देखा कि लोगों को calligraphy बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है because यहाँ पे काफी Muslims like Bangladesh, from Turkish and other like Muslims, they also like calligraphy. Or according to the customer, I can customize painting. So मैं उनके room के color theme and like wall का कितना size है and जिस तरह उनको customize कराना होता है, then I'll do that. Meza, I think this is one of the most beautiful expressions of art कि आप अपने घर में अपने लिविंग स्पेस में यू वांट टू पुट अ मैसेज ऑन द वॉल जिससे आप और आपकी फैमिली भी इंस्पायर हो और एनी गेस्ट हु वॉक्स इनटू योर हाउस इनटू योर लिविंग स्पेस वो देख के उससे उसको बहुत अच्छा फील हो, उसको इंस्पिरेशन मिले क्योंकि कैलीग्राफी में आप एक मैसेज आप जैसे अगर आप कुरानिक वर्सेस की आप कैलीग्राफी कर रहे हैं कोई और भी बात अच्छी जो है तो it is not just a piece of art, it is continuous learning. Yes, yeah, मैं अभी भी कहती हूँ कि I'm still learning. मैं तो अभी भी like सीख रही हूँ. I still do. मैं different type की चीजें भी try करते रहती हूँ like flowers and landscapes and all. Because I still learning. मेरा एक specific like mostly I do calligraphy. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक पे stuck हो गई हूँ. But I do abstract too, and calligraphy and landscape, flowers, marine life, like a lot of things. So, जो भी customer की demand होती है, they can customize. And so मेरा page भी है like Art by Humeza on Instagram and Facebook. So yeah, किसी ने भी like contact करना हो, they can check out my work over there. बिल्कुल. और मैं viewers से कहना चाहूंगी that in the description box below you will find all of Humeza's social media and all her contact details. So if you are aspiring and hoping to bring some lovely, wonderful, inspirational art pieces into your house, you can contact her और आप उनको आपकी एक जो imagery या imagination या जो एक visual आपके mind में है आप share कर सकते हैं और वो आपको वही piece create करके दे सकती हैं. अभी मेरे पास थोड़ा सा अपना आर्ट वर्क है भी साथ, तो इफ यू वांट मी टू शो यू, ये रीसेंट वर्क है मेरा. It is beautiful. So it's abstract and the calligraphy mix, and it's acrylic on canvas. Beautiful. So I mostly do acrylic and oil. Okay. On canvas and paper, and one of this, hope you can see it, is the shine. लाइट आ रही है तो थोड़ी सी इसमें शाइन पड़ेगी तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन. So that one is on paper, acrylic on paper. Okay. तो ये जब पेपर पे करते हैं acrylic on paper, तो this is a particular kind of paper? Yes, and उसके ऊपर like पहले coating करनी पड़ती है like for primer. Okay. And then you and वो particular paper mostly like watercolor papers भी use हो सकते हैं उसपे, and then you do the primer first and then उसके ऊपर acrylic. And this is on paper too. Very nice. Thank you. And this one is on panel. Okay. It's a panel, canvas panel होता है. Okay. देखिए सबकी जो एक फील है, सबकी फील बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत अलग अलग है. जो आप पेपर कह रही हैं, ट्रीटेड पेपर है, पेपर की अलग यूनिक फील है, कैनवस जी, क्योंकि पेपर बहुत से लोग चाहते हैं कि उसको लाइक फ्रेम कराएं इन ग्लास पे और वो फ्रेमिंग हो, तो वो आई थिंक इट लुक्स बेटर ऑन पेपर विद द फ्रेम, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं कि आप फ्रेम में पेपर को माउंट करके एंड देन यू कैन फ्रेम इट एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. एंड प्राइस वाइज भी आई थिंक ये चीपर होता है पेपर पे.
as compared to canvas. जी बिल्कुल, मैं- quite understandable. तो कैनवस पे भी वैसे फ्रेमिंग होती है, बट वो स्पेशल आपको कहीं फ्रेम्स वगैरह शॉप्स विद करवानी पड़ती है फिर. जी, Humeza, just to provide more information to any aspiring young artists कि जो भी कोई स्टूडेंट्स या हाई स्कूलर्स जो आर्टिस्ट बनना चाहते हों और उनका भी मीडियम यही हो कि ऑयल ऑन कैनवस या एक्रेलिक ऑन कैनवस, तो आप जो है आपको क्या बहुत ज्यादा आपको सप्लाईज और सेटअप चाहिए घर पे, आपको पूरा Uh, चाहिए, स्टूडियो चाहिए? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल. स्टार्ट बस आप एक मेरे ख्याल से एक स्केचबुक ले लें Okay. and get some few colors and good pencils and papers. That's it. वो आपको most सबसे ज्यादा ये है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होता है. The practice makes you better. So practice is the वो की है. so, so अब तो आप do you create pieces daily और या ये कि आप डेली एक पीस को थोड़ा थोड़ा स्कैफोल्डिंग करके डेवलप करते हैं? जैसे मैंने बताया कि आई एम अ मदर ऑफ 3 बॉयज, तो मुझे टाइम निकालना मुश्किल लगता है, लेकिन अभी मेरे माशाल्लाह जो बेटे हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं. लाइक one is 11 years old and one 8 years old and one is 4 year old. so सब तो तो मुझे लगता है अब थोड़ा टाइम निकालना महीने थोड़ा पॉसिबल हो रहा है. लाइक मैं डेली तो नहीं, लाइक आफ्टर 2 days कह रहे हैं कि मैं टाइम कोशिश करती हूँ निकाल लूं. एंड एक पीस अगर छोटा कैनवस है तो मैं एक दिन में कर लेती हूँ, लाइक कंप्लीट. Like if in a bigger canvas or कुछ बड़ा काम है तो then it will take time, like week or 2 weeks sometimes. ओके, ऑलराइट. हुमैजा, अगर हम आपसे पूछें कि आप अपनी इंस्पिरेशन जो है, डू यू टेक इट फ्रॉम नेचर? एक तो आप Yes, इतनी अच्छी कैलीग्राफी करती हैं तो वो तो आई नो इट्स स्पिरिचुअल, इट कम्स फ्रॉम विद इन. yes, लेकिन जो आप फ्लोरल्स करती हैं या लैंडस्केप या स्टिल्स पेंट करती हैं, सीनिक ब्यूटी कैप्चर करती हैं, तो वो ऑफ yes, कोर्स आप नेचर से लेती हैं या आपके yes. माइंड की विजुअलाइजेशन? uh, like calligraphy तो आपके अंदर से होता है, and of course nature से भी I'm take inspiration. Like I use bold colors. मुझे colors बहुत पसंद है. Like I use like red, yellow, and orange. I really like bold. Yes. So I don't like dull colors. Like मैंने बनाई है paintings like most of the sorry काफी customers like dull brown and gray stones कहते हैं. I'll do that, but I really like bold colors. So So do I. I love playing with colors. मैं भी बहुत ही, मुझे भी बचपन से पेंटिंग कलरिंग का शौक है. मैं भी एक्रिलिक्स oh, में that's करती हूँ, लेकिन मैं good. अपनी स्केचबुक में करती हूँ. जब हम अच्छा, आपका सीक्वल करेंगे इस इंटरव्यू का तो मैं आपको अपनी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी. हाँ sure, why not? I love colors. Humeza, I love to mix colors. चाहे मतलब all the colors in the spectrum. मुझे Yeah, peacock blue और turquoise और सारे golds and yellows और reds और oranges सब पसंद yeah. है, बहुत पसंद. सब पसंद है आपको. मेरे सेम हियर. मुझे काफी आई लाइक टू प्ले विद कलर्स. मुझे बोल्ड कलर्स पसंद है. सो बट इट्स ओके. लाइक बहुत से लोगों को लाइक ग्रे एंड ब्राउन इसकी टोन्स में भी, बट इट्स आल्सो लुक गुड like with gold, brown and gold, and this also looks good. But I like color. अभी एक flowers वाली भी painting है मेरे पास. हाँ दिखाइए, So, flowers but दिखाइए. it is it's not. ये मैंने किसी से inspiration ली है from the other artist, some I think foreigner artist. Very, very nice. Uh, Do you know what this painting is inspiring in me right now? मुझे इसकी yeah, खुशबू आ रही, जैसे फ्रेग्रेंस की, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस की बॉटल्स पे yeah. जो आर्ट होता है, ये फ्रेग्रेंस बॉटल आर्ट लग रहा है, जैसे परफ्यूम बॉटल पे बहुत जैसे महक आ रही है इससे. Yeah. Thank you.
तो प्रैक्टिस में भी मैं करती रहती हूँ काम, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए लाइक दूसरे आर्टिस्ट का भी इंस्पिरेशन लेती हूँ. जी जी. So this is a fish in watercolor. Okay, beautiful. I like the watercolor effect. बहुत अच्छा लगता Yeah, है. जी. yeah. And one of this. मजा, ये तो बहुत जबरदस्त. Thank you. कैसे ये फीचर्स को कैप्चर किया है? ब्यूटीफुल. हुमैजा, आप अपनी पेंटिंग्स को टाइटल भी देती हैं या दे आर अननेम्ड? Still on unnamed, but inshallah in future. Yeah, unnamed. अननेम्ड का ये फायदा है कि जो देखने वाला है वो अपनी नजर से और अपने स्पिरिट और सोल से खुद ही अपने दिल जी में नाम दे सकता है. हाँ जी, ये तो है, सही कह रही हैं. Abhi, viewers, at the end of the video, I'm going to attach a few clippings from newspapers in Pakistan, जो हुमैजा की जो early days थे, जब वो अपने आर्ट को डिस्प्ले करती थी और एग्जीबिशंस करती थी. तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है व्हेन शी वाज वर्किंग इन पाकिस्तान. आप उसका कुछ हाईलाइट करना चाहेंगी? तो पाकिस्तान में मेरा तो, आपको मैंने पहले भी बताया कि बचपन तो मेरा सारा आर्ट में ही था. लाइक मेरे फादर आर्टिस्ट हैं, तो मैंने उनको बचपन से ही देखा है. लेकिन इवन कि मैं जब छोटी, मतलब लाइक वेरी यंग, लाइक 10 years old, 8 years old, तो मेरा वो कैनवस वाइट, उस पे जो प्राइमर करना होता था, तो वो कहते थे कि चलो तुम प्राइमर कर लो. So I do the उस पे व्हाइट वॉश मैं कर रही होती थी. तो उसके बाद फिर मैंने सीखा. नाहिद रजा मेरी टीचर थी, वो वेरी वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान. आर्ट्स काउंसिल में मेरी नाहिद रजा से मैंने उनसे सीखा, और काफी अच्छा. फिर उसके बाद एक दो एग्जीबिशन छोटी मोटी ग्रुप में की. देन मैंने टीचिंग भी की स्कूल में, इन कराची, लाइक जूनियर क्लासेस. लेकिन स्कूल में मैं grade 1 to class 8 तक मैं आर्ट क्लासेस देती थी. That's wonderful. in Clifton High School. So that's all. बस. Thank you very much. आपने हमें इतना, I'm feeling so refreshed and rejuvenated कि आज हमने बात की with somebody who looks at the world and expresses whatever their perception of the world is through paint and brush. आप अपने जहन की सारी इंस्पिरेशन कहने के बजाय, लिखने के बजाय, आप रंगों की सूरत में दुनिया को प्रेजेंट करते हैं. That's so wonderful. Thank you. You know, I should thank you for taking out the time to be part of the show and for sharing Thank it you with so my much. viewers. और Thank you आपको so much. मोस्ट वेलकम. थोड़े दिनों में आपको हमें दोबारा टाइम देना होगा. अच्छा. Sure. एंड इस असना में आपने जो और कुछ एडिशनल आर्ट पीसेस क्रिएट किए होंगे, फिर आप हमारे शो पे वो एग्जिबिट कीजिएगा. हाँ, श्योर, इंशाल्लाह जरूर. हाँ जी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लगा फौजी आपसे बात करके. थैंक यू हुमैजा. बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी दोबारा. और टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू यू विद योर क्रिएटिव जर्नी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. बाय.